Hello students, welcome to Super 7 revision series. This is the 5th video in which I am going to tell you about 7 most expected questions based on hypotheses and experiments conducted by various scientists which can come in cbse board exams. This is the first experiment from chapter number 6, Frederick Griffith's experiment based on transforming principle. He conducted experiment on Streptococcus pneumonia in 1928 and he did series of experiments. First experiment, what was that? He took S strain of Staphylococcus bacteria. Okay, what is the characteristic feature of this S strain? S strains are smooth with polysaccharide coat outside and they are virulent, means they cause pneumonia. Okay, when he injected S strain into the mice died of pneumonia. Second experiment, what was that? He took R strain bacteria. Okay, and R strain के characteristic features क्या हैं? They are rough with no polysaccharide coat and they are non-virulent. And he injected this R strain bacteria into the mice. There was no pneumonia in the mice and mice was alive. Third experiment, what he did? He heat this S strain bacteria and S strain heat killed bacteria and then he injected them into mice. What he observed? No pneumonia was there and mice was live. Fourth experiment, two things को mix किया उन्होंने, S strain heat killed bacteria को जिससे pneumonia नहीं हो रहा था प्लस R strain live bacteria को जिससे भी pneumonia नहीं हो रहा था. दोनों को mix करके then he injected into the mice. What he observed? He observed that mice died of pneumonia. What happened? What was the conclusion? See the right side conclusion देखिए. 1. R strain bacteria transform हो गए by S strain bacteria. Second point, some transforming principle transferred हो गया from heat killed S strain to R strain, जिसकी वजह से R strain ने क्या बना लिया? Point number 3 देखिए. R strain synthesizes a smooth polysaccharide coat और virulent बन गया वो. Okay. So this was the experiment given by Frederick Griffith. So he said there must be some genetic material which must have transferred from S strain to R strain, but was not able to explain this. Okay. Now see the question related to this. फ्लो चार्ट दिए गए हैं ABC और आपको इसको देखकर आंसर करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. नेम द ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द टू स्ट्रेन्स R and S respectively. Name of the organism is Streptococcus pneumoniae and then you have to make the table. Column बनाइए R cells and S cells and write the 3 differences between the two. Okay. Now question number 2 देखिए. Write the result A obtained in step C. Step C देखिए क्या है? Heat killed S strain plus live R strain को inject किया into the mice. What is the result? Mice died of pneumonia. Question number 3. Name the scientist who performed this step A, B, C. Frederick Griffith performed the steps A, B and C. Clear? Now, next set of experiments were done by Oswald Avery, Colin MacLeod and Macklin McCarthy from 1933 to 44. And they tried to find out the biochemical nature of transforming principle. What they did? हीट किल्ड एस बैक्टीरिया लिया उन्होंने और उसमें से 3 चीज़ों को आइसोलेट कर लिया. प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए. यू कैन सी द टेस्ट ट्यूब जिसमें तीनों चीज़ें मिक्स्ड हैं, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में देखिए क्या किया. दे एडेड प्रोटीएजेस. अब प्रोटीन नहीं था, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया है. फ्लास्क में दे एडेड आर सेल्स और व्हाट दे ऑब्जर्व, एस सेल अपीयर हो गए. इट मीन्स प्रोटीन्स की एब्सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. So proteins are not responsible for transformation. Okay. Second test tube देखिए. They added RNases. RNA को digest कर दिया. No RNA is there. Then they added R cell. Flask के अंदर देखिए R cell को add कर दिया है. And then what they observed? S cell appear. यहाँ पर भी absence में, RNA की absence में transformation हो रहा है. It means RNA is also not responsible for transformation. Third टेस्ट ट्यूब देखिए. व्हाट दे एडेड डीएनएजेस. अब कोई डीएनए नहीं है, डीएनए डाइजेस्ट हो गया है.
एंड दे एडेड आर सेल्स, और यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई एस सेल नहीं दिखाई दिया क्योंकि डीएनए नहीं था. सो दे डिस्कवर्ड द डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया caused R bacteria to become transformed. Clear? So this was the observation of these scientists. Clear? See the question. How did Avery, C. MacLeod and McCarthy prove that DNA was the genetic material? Explain. 3 points में इसको आप लिखेंगे. Point number 1, isolate किया तीनों चीज़ों को, proteins, DNA and RNA को from heat killed S bacteria. Second, they found that digestion with proteases and with RNases do not affect the transformation. It means protein और RNA responsible नहीं है transformation के लिए. Third point पर देखिए, digestion with DNAs did inhibit transformation. This suggests that DNA is responsible for transformation. Okay. Now next experiment is given by Hershey and Chase. What they did, they worked to discover whether it was protein or DNA from virus enter the bacteria. कौन सा है जो बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है. 1952 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड दे टुक बैक्टीरियोफेज वायरस. बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं. कौन सा बैक्टीरिया लिया? दे टुक ई कोलाई बैक्टीरिया. ओके, तो कैसे उन्होंने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट? पॉइंट नंबर 2 पर देखिए, राइट हैंड साइड पर, दे ग्रू वायरसेस इन रेडियो एक्टिव P32. राइट हैंड साइड का डायग्राम देखिए बैक्टीरियोफेज का. एज अ रिजल्ट वायरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए. देखिए वायरस के अंदर जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव है, जो रेड कलर से शो किया गया है, P32 से लेबल्ड है वो. लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, वायरस ग्रो इन रेडियो एक्टिव S35 कंटेन्ड रेडियो एक्टिव प्रोटीन एंड नॉट डीएनए. यहां पर प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव किया गया है बाय S35. लेफ्ट हैंड साइड वाला बैक्टीरियोफेज देखिए. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, रेडियो एक्टिव कर लिया है हमने दोनों बैक्टीरियोफेजेस को. सेकेंड स्टेप पर आइए, इन्फेक्शन. नाउ ई कोलाई आर इन्फेक्टेड विद दीज बैक्टीरियोफेजेस. और जब इन्फेक्शन होता है तो व्हाट हैपन, बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट्स ओनली डीएनए एंड नॉट प्रोटीन टू बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ डीएनए जाता है, नॉट द प्रोटीन कोड. दिस इज द स्टेप इन्फेक्शन. देन ब्लेंडिंग इज डन. एजिटेट किया गया इनको ताकि प्रोटीन कोड को सेपरेट किया जा सके फ्रॉम बैक्टीरियल सेल. डायग्राम में देख सकते हो प्रोटीन कोड थोड़ा दूर जा चुका है, सेपरेट हो चुका है फ्रॉम द सेल, बैक्टीरियल सेल. दिस इज द ब्लेंडिंग एंड देन द सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन. एंड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, टेस्ट ट्यूब देखिए. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब देखिए, यहाँ पर ऊपर के पार्ट में सुपरनेटेंट होता है और नीचे सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स कलेक्ट हो जाते हैं. सुपरनेटेंट में वायरस कलेक्ट होगा. ओके, तो व्हाट दे ऑब्जर्व इन द फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, S35 लेबल्ड फेज प्रोटीन फाउंड इन द सुपरनेटेंट. और जो बैक्टीरियल सेल था उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं देखा गया. ओके, सो अंदर कौन सा चीज गया है? डीएनए, नॉट द प्रोटीन. सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में डायग्राम देखिए, टेस्ट ट्यूब देखिए. नीचे जो है वो बैक्टीरियल सेल कलेक्ट हो गए हैं, ऊपर से सुपरनेटेंट है. तो जो नीचे पैलेट है उसमें क्या दिखाई दिया? P32 लेबल्ड डीएनए फाउंड इन द पैलेट. इट मीन्स जो डीएनए था इट एंटर्ड इनटू द बैक्टीरियल सेल, नॉट द प्रोटीन कोड. सो पॉइंट नंबर 5 पर आइए, राइट हैंड साइड पर, डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट पासेस फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया. क्लियर? नाउ सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 तीनों जो क्वेश्चंस हैं इसका आंसर एक है. You have to explain the Hershey and Chase experiment with the help of diagram and points you have to write. So point number 1 पर you have to write radioactive कर रहे हैं बैक्टीरियोफेजेस को. सेकेंड में बैक्टीरियोफेज आर इन्फेक्टिंग द ई कोलाई बैक्टीरिया. थर्ड में blending is done to separate the protein code from the cells of bacteria. Then after centrifugation write the observation and then write the conclusion. सो 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में आता है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए. क्लियर? नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स बाय डेविड टिलमैन फ्रॉम चैप्टर नंबर 15. व्हाट ही डिड, he tried to find out the relationship between the diversity and the stability in the community. Communities with more species, जिस कम्युनिटी में ज़्यादा स्पीशीज हैं, they tend to be more stable.
देन दोज विद लेस स्पीशीज। इसको प्रूव करने के लिए डेविड टिलमैन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए आउटडोर प्लॉट्स पर, ठीक है, प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज। और क्या ऑब्जर्व किया, जिन प्लॉट्स के अंदर ज़्यादा स्पीशीज हैं ऑर्गेनिजम्स की, प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है इन द टोटल बायोमास, स्टेबल है ज़्यादा वो। एंड सेकेंड क्या ऑब्जर्वेशन था, इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हाई प्रोडक्टिविटी, उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी कम्युनिटी के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन, greater the diversity, greater is the primary productivity. This was the observation of David Tilman. See the question. Stability of a community depends on its species richness. Write how David Tilman showed this experimentally. So you have to write two observations. जो observation था David Tilman का, first, the plots with more species showed less year to year variation in total biomass, and second, plots with increased diversity showed higher productivity. Now, next, rivet Popper hypothesis from chapter 15. Contribution of species richness in functioning of ecosystem. इसको explain करना बहुत difficult है, पता करना बहुत difficult है, but it can be explained by using the analogy, and this analogy was given by Paul Ehrlich. क्या था analogy इनका? इकोसिस्टम को कंपेयर किया गया एरोप्लेन से, और एरोप्लेन में जो रिवेट्स लगे हैं, ईच रिवेट इज कंपेयर टू स्पीशीज. व्हाट ही सेड, पॉइंट नंबर 1, इफ एवरी पैसेंजर स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवेट, अगर हर पैसेंजर रिवेट निकालना स्टार्ट कर दे एरोप्लेन में से, इट मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी इनिशियली, शुरू में हो सकता है फ्लाइट को कोई नुकसान ना पहुंचे. पॉइंट नंबर 2, इफ मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, अगर ज़्यादा रिवेट्स को निकालते चले जाएंगे तो क्या होगा, द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक, प्लेन वीक होता चला जाएगा. पॉइंट नंबर 3 पर आइए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने रिवेट कहाँ से निकाला है. लॉस ऑफ रिवेट फ्रॉम विंग्स इज मोर सीरियस देन रिवेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द सीट. सो व्हाट वाज द हाइपोथेसिस. रिवेट पॉपर देखिए क्या है राइट हैंड साइड पर, ईच स्पीशीज इज इंपॉर्टेंट इन इट्स ओन स्मॉल वे, हर स्पीशीज इंपॉर्टेंट है. लूज वन, एक को लूज करिए एंड लिटिल हैपन्स, बट इकोसिस्टम वीक हो सकता है. लूज सेवरल स्पीशीज, अगर जितनी ज़्यादा स्पीशीज को हम लूज करते चले जाएंगे, एट सम टाइम द होल सिस्टम में फेल. ओके, सो स्पीशीज रिचनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ecosystem. This can be explained by the analogy given by Paul Ehrlich. Clear? Now come to the question. You have to match column 1 with column 2. A. Rivets. Rivets को किससे कंपेयर किया गया है? पॉइंट नंबर 2 पर लिखा है स्पीशीज से कंपेयर किया गया है. एयरप्लेन को किससे कंपेयर किया गया है? टू द इकोसिस्टम. पॉपिंग अ रिवेट, पॉइंट नंबर 5 पर आइए, अ स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट. रिवेट्स ऑन द विंग्स को किससे कंपेयर किया गया है? पॉइंट नंबर 3, की स्पीशीज से. एंड फ्लाइट सेफ्टी को कंपेयर किया गया है, पॉइंट नंबर 4 पर आइए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम. So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you.